सौरुड्या का गुले आना भी जिनसो पत्र मासे गुले ढेक्का ना कसं जिने मुकलिंगा जो पहाड़ है ये देख सकते हो, ये है पहाड़। यहाँ से We are in the 21st century where the life of people are easy, fast and developed. But in this generation also there is a village where people are still in 80s or 90s. In today's video we are going to visit a village where people are away from the light and development. So stay tuned till the end and let's explore the village together. Hello everyone, welcome to my another video, and today we are going to one of the most beautiful and well-known place, that is Muklingya Hill. And if you see the sky, the nature, the beauty, it's too awesome. But yeah, the roads are still yet to be completed or constructed, but that's what it's saying is there, right? For every beautiful destination there is a difficult road. So yeah, थोड़ा ट्रैक करते हैं, चढ़ते हैं, and you're gonna see a beautiful view. And you know this place, but there is another village near this, and that village is today also, I'll not say it's in dark, but in this generation also वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का उतना फैसिलिटी नहीं है, और वहाँ मतलब नेटवर्क भी नहीं है. So we'll cover that, so stay tuned till the end and you will see the unseen Kandhamal Jivdagiri. Yes, currently I'm in Muklingya Hill, and you know it's well famous, and I think within 3-4 years, मतलब 3-4 साल पहले ही ये बहुत फेमस हुआ था. You know that it's too like peaceful and too awesome place. Those who have visited, I hope and I know that you people love this place. But today I am going to a village, and everyone whoever comes here can see that village here. It's called Loireju. So I'm going to that village and I'm going to cover how the people are living there, because I have heard that there is no roads, there is no electricity, no mobile networks on anything. So how people in this generation also they are surviving their life, show their lifestyle and their story, their side of story, how they're living. So stay tuned, watch this video till the end, and let's continue. Godaraka, which is also well known as Muklingya Hill, and which was famous within these 4 to 5 years. After COVID, many people knew about this place, and not only within the district or state, many tourists outside the state also visited this place very often. Beside this famous tourist place Muklingya Hill, there is a village which is called Loireju, and which is around 100 years, and still the lives of the people there are different today as well. I'm sure many people, those who visit Muklingya Hill, see that village and think about it. So let us explore this village and know more about it. ये है मुकलिंगा का एंट्रेंस. अगर आप यहाँ से उदयगिरी से आते हैं तो ये यहाँ से आप आएंगे और ऊपर जाएंगे, है वो है मुकलिंगा, और वहाँ से सीधा एक छोटा सा रास्ता यहाँ कनेक्ट करता है, जो कि वो गांव को हमको लेके जाएगा. तो हम लोग अभी जा रहे हैं वो गांव. सो अभी से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मतलब इतना छोटा सा रास्ता आप देख सकते हैं. वहाँ जा रहे हैं तो आगे विल सी. आई डोंट नो हाउ द वे द रोड विल बी, बट लेट्स सी दिस इज़ द वे एंड दिस इज़ द मेन रोड. ये मेन रोड है
लोगों को आने जाने के लिए। एंड यहाँ से जो वहाँ का नेटिव है, जिसका गांव ये है, वो बंदा हमें बोला कि यहाँ से 5 किलोमीटर है। एंड यू इमेजिन इन दिस रोड पीपल कम एंड गो, एंड दिस इज़ द मेन वे। सी दिस इज़ द मेन वे कि लोगों के लिए लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। एंड दैट टू दे कैरी लॉट ऑफ गुड्स। मैं एक बार देखा था कि दे कैरी लाइक द सैक ऑफ राइस एंड ऑल, एंड दे जस्ट ट्रैवल टू द मेन मार्केट, जो कि यहाँ से आई डोंट नो, इट माइट बी 7 to 10 किलोमीटर्स चांस होगा। बट इट्स सो सैड दैट आज भी यहाँ रास्ता नहीं है, प्रॉपर रोड। एंड sometimes we complain, right, about our life and all, but imagine how people's life will be here. It's like sad and sad only. So let's see, let's go and see how. And today again I have with me Ensaroj bro, Ensaroj Vlogs, you know. फर्स्ट टाइम हम लोग एक ब्लॉग किए थे, जिससे इसका पिछले वाला वीडियो आप लोग देखे हैं। और आज जो वीडियो है ना, दैट विल बी ऑल्सो टू मच इंटरेस्टिंग एंड द रियलिटी आई डोंट नो टू से, बट आई एम एक्साइटेड टू फॉर दिस वीडियो। सो सरोज भाई, व्हाट यू वांट टू से? सिंपल, चलो देखते हैं। ओके लेट्स गो। आप लोग ये रास्ता देख सकते हैं, हम लोग को यहाँ चलने के लिए इतना मुश्किल हो रहा है। एंड ये है उनका मेन रोड जो कि उनको हर चीज़ से कनेक्ट करता है, चाहे वो हॉस्पिटल जाए, चाहे वो मार्केट जाए। दैट टू दे कैरी देयर लगेजेस, नॉट लगेजेस लाइक टीन, लाइक shack of like rice or cement bags or anything. And in this road walking is giving us difficult. It is difficult to walk here, and carrying luggage in their head, we don't know how, and if there will be some emergency, how they will be covering this road, we don't know. But let's see, let's go there and see how their life will be and how their life is. So stay tuned. आप लोग ये रास्ता देख सकते हैं, हम लोग को चलने के लिए यहाँ मुश्किल हो रहे हैं। और ये गांव वालों के लिए ये है उनका मेन रोड, जो कि इनको मार्केट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मेन रोड है। ये रास्ता जो कि मार्केट जाने के लिए है, चाहे हॉस्पिटल जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो। एंड आई डोंट नो how they will be communicating, how they'll be going if there will be any emergency, but that's true difficult, क्योंकि बगल में ही है टूरिस्ट प्लेस जो कि well known and it is beautiful, everyone says it's beautiful, it is heaven and all, but उसके बगल में ही ये है सीन कि जहाँ की रास्ता नहीं होगा गाँव जाने के लिए. So let's see how the lifestyle will be of the people and we'll cover them also, so please stay tuned and watch the video till the end. You can see the mangoes out here जो कि free में हमें मिल रहा है, but for everything there is a cost. Saroj bhai, how is the Josh and how are you paying the cost to walk through this road? आराम से. ओह, अगर आप सोच रहे होंगे कि इस जंगल में कौन वो इंसान था जो आके घर बनाया, तो वो थे जोके प्रधान, उसके बाद उनका बेटा रंगा प्रधान, फिर कालिदास प्रधान, मदन प्रधान और उसके बाद है दिलोन प्रधान, जो कि आज का हमारा गाइड है दिलोन प्रधान. और ऐसे करके 4 से 5 जनरेशन है इस गांव में. the roads. This is, I don't know if you will call it a road. You imagine people coming in their daily life and doing hiking here. This is not exactly the true road, and they have to hike if they want to come to for market or for communication. Even there is no network also here. I'll show you on my phone also the network. There is no network here also.
I don't know how they will communicate and how they are communicating, how they're coming. दिन में मतलब I'll say they can या चलेगा, वो लोग आ सकते हैं, आते हैं, बट रात में अगर कुछ इमरजेंसी हो तो God knows how they will be coming in this jungle. And this is not called a road also. They have to hike every time to come to market or everywhere. So कुछ देर आगे चलते वक्त हमें कुछ मिला एंड मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देख सकते हैं. एंड इसके बारे में मुझे उतना कुछ पता नहीं, बट आवर एक्सपीरियंस माय फ्रेंड वो कुछ बताएंगे इसके बारे में. तो सरोज भाई अब क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? ये एक अलग टाइप का एक पूजा होता है, ठीक है, जो कि गांव में करते हैं. जैसे अपने देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का पूजा होता है. तो यहाँ पे ना पेनु का मतलब होता है गॉड, ठीक है. धरनी का मतलब होता है धौरणी. इन ओडिया इट्स कॉल्ड धौरणी. तो हम जमीन बोल सकते हैं, जो जमीन की देवता भी बोल सकते हैं. तो द गॉडेस ऑफ अर्थ. हाँ, गॉडेस ऑफ अर्थ बोल सकते हैं. और इस डिस्ट्रिक्ट में खास करके पुराने जो रिवाज हुआ करता था उस टाइम बोलते थे धरनी पेनु, पीटेर पेनु, सौरू पेनु, मेला पेनु. तो 4 टाइप के गॉड हुआ करते थे. आज के डेट पे ये थोड़ा कम हो गया है, काफ़ी सारे लोग इधर उधर हो गए, वो अलग बात है, लेकिन ये उनमें से एक है. तो गांव के जो लोग होते हैं ना, अपनी कुछ मतलब परेशानियों को लेके आते हैं, वो पूजा करते हैं, फिर जंगल के किसी कोने में इसको छोड़ के जाते हैं. तो उनका मानना है कि भगवान आके इसको स्वीकार कर लेगा. थैंक यू सो मच सरोज भाई. अब देखिए ये आई डोंट नो कि कितने जन को पता होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था. एंड ऑल थैंक्स टू सरोज भाई कि ही इज शोइंग मी एंड ही इज अलाउइंग मी टू एक्सप्लोर लाइक दिस प्लेसेस. एंड आपको उसका आंसर मिल गया. मैं उसको जो भी है नाम मुझे बोले वो स्क्रीन में आप देख सकते हैं. और ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है. आगे बहुत सारी चीज़ें हैं हम आपको दिखाएंगे जो कि आप कभी देखे नहीं होंगे, आप कभी सोचे नहीं होंगे कि ऐसे भी लोग रहते हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. While walking, एक चीज़ दिमाग में आ रहा था. Apart from these villagers, will anyone or any person have visited this place? तो बात करके पता चला there was a doctor called Dr. Dakwa. वो यहाँ आए थे and he was the first and last doctor to visit here. And some government employees of Integrated Child Development Services, कुछ workers आए थे. नहीं तो इस गांव में ऐसे आना is very difficult. आप लोग अगर सोच रहे हो कि हम लोग यहाँ लाइक कैसे आ रहे हैं और कैसे पहुँचे हैं, तो अगर आपको लग रहा हो कि रास्ता अगर नहीं है तो हम लोग कैसे पता चला और कैसे रास्ता है आने के लिए, तो हमारे साथ वहाँ का एक लोकल है दिलोन हाई को इधर के, और वही है जो कि हमें वो गांव तक लेके जा रहे हैं. वही आज हमारा गाइड है. तो दिलोन एटा कौन एटा मेन रास्ता माने मार्केट को भी कोड जाओगे, एटा ही मेन रास्ता. अच्छा. तो आप लोग सुने कि यही मेन रास्ता है जो गांव के लोग हैं जो यहाँ से ही क्रॉस करके जाते हैं, चाहे मार्केट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, या कहीं भी जाने के लिए यही रास्ता वो लोग लेते हैं. एंड इट्स स्ट्रेंज लाइक हाउ पीपल वॉक थ्रू दिस रोड. हाँ, द नेचर इज़ ब्यूटी, बट इफ विल टॉक अबाउट द रियलिटी इट्स टू डिफिकल्ट वॉकिंग थ्रू दिस प्लेन्स एंड नो exact road is here. So let's go and see how the lives of these villagers are. It's been 100 years and still there is no roads, no development. And still the villagers are here. There will be some reason why the villagers are still living in this place. So stay tuned till the end. Dilon, ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ପହଞ୍ଚିବାକୁ? ଆଉ 1.5 किलोमीटर. ओके, ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ଆମେ ଚାଲିକି ଆସିଥିବା ଏବେ? कम से कम 4 पाखापाखि. सरोज भाई आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे घर जाना है. घर तो मुझे भी जाना है, लेकिन आज हम दिलोन के घर जा रहे हैं. आज के वीडियो में बस मैं अकेला नहीं थक रहा हूँ, मेरे साथ है और 4 राकेश भाई, दिलोन, सरोज भाई को तो आप जानते हैं, एन सरोज ब्लॉग्स एंड निवेदिता ऑन ड्यूटी. मैं स्क्रीन में सबका सोशल मीडिया हैंडल दूंगा. प्लीज़ डू फॉलो एंड सब्सक्राइब. एंड ये बहुत मेहनत है, इट्स नॉट ईजी. जैसा लगता है वीडियो में कि चलना वीडियो करना, इट्स नॉट ईजी. सो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड गिव योर लव. आफ्टर ऑफ ट्रेक अराउंड 4 किलोमीटर्स वी गो टू सी ए साइन बोर्ड, जो कि यहाँ
बता रहा है कि ये ग्राम पंचायत मालिकापोडी ग्रामो लोयरेजू. The panchayat is Maligapodi and the village is Loyareju. And this is the way we have to go. And I think one more kilometer is there where we have to cover through this road. And after that, this road will lead us to that village Loyareju. So I'm excited. The closer we move to the village, I'm excited to know the story of the people, how they would survive and how they are living in this place. So please do watch this video till the end, and please do comment your reviews, your feedbacks, and please do support me, give your love, and thank you so much. I do pray for you all and keep smiling. So I'll see you going there in the village for a while. Whoa! So फाइनली कुछ घर हमें दिखाई दिया एंड जस्ट आई विल सी. वो घर देखे ना चेहरे पे, यू कैन सी माई स्माइल बिकॉज अराउंड 5 किलोमीटर ट्रेक करने के बाद ये रोड पे आना और घर दिखना एक होता है ना, जाना जाना. तो वो है जिस जगह हम लोग पहुंचने वाले थे, वहाँ फाइनली हम पहुंच गए हैं. सो लेट्स गो. Let's see, let's talk with the people and know their story. Finally और एक लोकल यहाँ का हमें मिले और उनसे बात कर रहे हैं और हम जा रहे हैं. ये रास्ता वो दिखाए. What होता भाई तुम्हें? नेटो जाओ सेठ कोड़ी पाइबो मैंने एटू कहते बाप रे कम से कम 2 किलोमीटर. हाँ 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर हो. सैल्यूट भाई तुम मानू सैल्यूट रेड रोल छो. ठीक है जाओ. सो आप लोग सुने वो उनसे कि अभी नेटवर्क ढूंढने के लिए 1.5 किलोमीटर जाएंगे उधर, मतलब किसी से कांटेक्ट करने के लिए. सी हाउ पैथेटिक द लाइफ इज. वो यू कैन सी, मतलब it's totally surrounded by the mountains and literally if you'll see पूरा मतलब पहाड़ कवर करते हुए ये गांव है, घर है, और ये देख सकते हैं. एंड दिस इज़ द वे. ये मेन वे है जो कि गांव के अंदर हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे. एंड अभी गांव है तो दिखाई दे रहा है काउस, गाय, बैल, गोट एंड ऑल. तो अगर ये है वो गांव पहुंच रहे हैं. पता नहीं इस गांव में कितना घर है. एंड वो रहा मुकलिंगे माउंटेन. अभी शायद नहीं दिख रहा है वो पेड़ के पीछे वो पत्थर जहाँ पे सब फोटो खींचते हैं. सो लेट्स गो एंड लेट्स सी. फाइनली हम लोग यहाँ पहुँचे. एंड आई डोंट नो, मुकलिंगा हिल तो बहुत जन आते हैं बट इस जगह इस गाँव आई डोंट थिंक सो एनी वन वुड हैव कम. एंड बट ऐसा नहीं है कि नहीं आना सकते हैं, आप लोग भी आ सकते हैं. बट इट्स टू पीसफुल गांव में. बट ये वीडियो इसलिए करना चाहा मैंने क्योंकि आई लव टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड. और मैं नहीं जानता, कोई भी आ सकता है, शायद आए होंगे, वीडियोस नहीं बनाए होंगे, लेकिन मैं वो कवर करना चाहता था और लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा भी गाँव हैं. और गाँव में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर कनेक्शन नहीं आया है, लेकिन सोलर पैनल सब लगा हुआ है. आप देख सकते हैं घर के सब घर में. एंड वो पूछते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड या कैसा क्या, हम लोगों से बात करने के बाद जान सकते हैं. और ये है छोटा सा गांव लोयरेजू जो कि मालिकापुरा पंचायत जीवोदयगिरी ब्लॉक कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है. एंड आप देख सकते हैं ज़्यादा उतना घर है नहीं. यू कैन सी इतना घर है. यू कैन सी द माउंटेन्स देयर. और यहाँ पे ये है. एंड आई एम लविंग दिस एंड it's too good. You see the mountains there, you see here everyone is busy capturing. and दिलन जो हमारे साथ आया था ये उसका घर है. तो फाइनली हम लोग पहुंच गए. ये हम लोग दिल्लन के घर गए और उसकी मम्मी और उसकी बहन से मिले. They were so sweet people.
फिर उनसे बहुत सारे बातें हुई। फिर बात करके पता चला कि कुछ दिन पहले ही दिलोन की छोटी बहन को एक सांप ने काटा था और वो लोग इसी रास्ते से जीवदेगिरी हॉस्पिटल लेके गए थे। हम लोग ये सोच के हैरान हो गए कि इस रास्ते पे शाम को कैसे लेके गए। कुछ देर बात करने के बाद हम लोग वो गांव घूमे एंड इट वाज सो सूदिंग। ये है वो जगह मैं वहाँ पहुँचा जो मुकलिंगा हिल से ये गांव और ये सारा फील्ड दिखता है। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा वो मुकलिंगा जो पहाड़ है, देख सकते हो। यहाँ से एंड आई एम श्योर कि बहुत लोग यहाँ आने के लिए सोचे होंगे, बट आई ट्राई टू कम, आई टुक अ रिस्क एंड लकी टू सी दिस एंड see this beauty. It's covered. वो पहाड़ है जहाँ से हम दिखता है। अगर ऊपर जाएंगे तो ये वो पहाड़ है एंड इट्स ब्यूटी। बट आप लोग तो पूरा वीडियो स्टार्टिंग से अगर देख रहे हैं तो डिफ़िकल्टीज है चढ़ने के लिए, बट इट्स वंडरफुल टू एक्सपीरियंस लाइक दिस थिंग्स एंड जो कि हम अनएक्सप्लोर्ड में अभी उनका हम लोग सुनेंगे स्टोरी कि कैसे वो लोग रहते हैं, क्या है उनका सोर्स ऑफ इनकम या क्या कैसे वो लोग यहाँ जी रहे हैं। तो लास्ट तक है वीडियो। ये देख सकते हैं आप गांव, और ये है द शेड, काऊ बेल या गोट सब रखने के लिए। और आगे शायद ये गांव के लिए वो वाटर टैंक है जो वाटर सप्लाई के लिए। और देख सकते हैं ये वाला, ये वाटर टैंक एंड ये है एंड ऑफ द विलेज। इसके बाद सिर्फ जंगल ही जंगल है, आगे कुछ है नहीं। और ये है, देख सकते हैं, मैं एंड की तरफ से वीडियो बना रहा हूँ। एंड सी द ग्रीनरी, द ब्यूटी, द कामनेस, द पीस। बट जो रास्ता आप लोग ने देखे, इट्स अगर बस उनके लिए कम्युनिकेट करने के लिए अगर कुछ अगर हो जाएगा तो उन लोग के लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। एंड इट्स ए ब्यूटीफुल विलेज, माउंटेन 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 सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड इट्स वेरी वेरी अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एंड थक तो गया हूँ बट आई एम फीलिंग good and let's talk to people and this is whole village you can see and ये है कुछ गांव वाले यहाँ देख सकते हैं। हाँ इर आना रीरी गुले आना रीरी इरपी हाँ इंगा अन्य पता नहीं, आई डोंट नो, मैं पूछ के वे स्क्रीन में डाल दूँगा क्या है ये। बट देख सकते हैं कितना क्यूट लोग हैं यहाँ बैठे हैं। माँ है माट गए जोहार गए इधर के ना माँ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एंड ये है वो गांव, बहुत सुंदर है। तो माँ ई रू जो मार्केट साजिनेर बजार एम्बेक साजिनेर ओ जीवदेगिरी इसिंग साजिनेर पाहेर तो सिडे ओ तो केतड़े सौरुड़े का गुट गुले आना भी जिनस पत्र मासे गुले ढेक्का ना साजिनेर हां आय ना संगाय ए पाहिर का ओ गवर्नमेंट बाई सिडे की ना पाहिर की बसेलू बा सिडे कलेक्टर बासिन बलि गुडाडी यानी आगे एग्जाम गयां तो पाहिर के आते गाने मासु हां ए सिडु तंगेल पाहिर बा ए किंबा 13 कोटी टा संगा आते आ ए इंते ओहो ए री जो पानी टांकी माने सिरु टांकी जो अंबा माने एम्बा गया ने या ते सरकार ने कहियो जेना सरकार बाजन गया ने सजाने खाली रूट सेडुआ का मोना की फिनाने ओहो ए सिडु टांगे रूट बा ओहो ए सिडु टांगे ओहो एसी bangi are itu silo mana bidang ba terima kita ngelu ba ne yang mana सब कलेक्टर भी आज दिन बस कितना गो
ओह हो Nếu mà ai gian mà có hình ba chị ta những cái sao mà má ba bằng ai thì dia na aku tak akan jadi dia tu. Aku kali macam emang ni dia bosa si dia itu na. ओह हो Ada aku tak bisa dia. ओह हो Aku kami kata lagi ah. Pang kata masih ya. ओह ana besta teninga Ya ini dia bosa si dia tu bosa kita. ओह हो ओह हो अच्छा अच्छा तो गवर्नमेंट लोग बाइनर बाइनर के ना आइम बा डेली पैसे दे हाँ ठीक मन ठीक है सजन भाई ने तो आप लोग आमु आनु भुवनेश्वर बाते इंगा अलग अलग जगह बाजा ना मम तो आप लोग सुने मैं सब टाइटल दे दूँगा स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं आई डोंट नो आप लोग समझ सके कि नहीं तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ गवर्नमेंट का लोग उतना आते नहीं वो जो वाटर टैंक आप लोग देखिए वो गवर्नमेंट नहीं करवाया लेकिन रोड के लिए बोल रहे हैं ये जितना घर है इस गांव में उतना घर के लिए रोड अभी नहीं बनेगा क्योंकि उतना पैसा उतना बजट वो मांग रहे हैं बट फिर भी हम लोग का वॉइस है कि अगर रोड बन जाएगा इस रोड पे मतलब इस गांव पे तो इट विल बी ए ग्रेट हेल्प फॉर दिस पीपल एंड इट्स अ वंडरफुल विलेज आई एम लविंग इट बट द रोड देखने के बाद थोड़ा मुश्किल है बट फिर भी इट्स टू गुड अभी गांव के हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं जहाँ से उन लोग को मतलब वाटर रिसोर्सेज जो भी छोटा सा नदी पोंड ये जो भी है एंड यू कैन सी दिस पानी यहाँ एंड ये है उनका सोर्स जहाँ से ये लोग पानी वानी लेते हैं ये जो भी तो यू कौन पानी कौन यहाँ कौन गाधा वाधा पानी की हाँ तो यही पानी रू गाधा पीवा खाइए पीवा यही पानी का अच्छा अच्छा तो आप लोग सुने कि ये है वो पहाड़ मतलब वो नदी व वाटर सिस्टम जहाँ से ये लोग यहीं से ही पानी लेते हैं खाने के लिए यहीं नहाने के लिए यूज़ करते हैं एंड यू कैन सी एंड मेरे को लगता है कि दिस पार्ट ऑफ द विलेज नो ये एक अलग पार्ट ऑफ द विलेज लग रहा है क्योंकि इट्स ब्यूटीफुल यार इट्स टू ब्यूटीफुल वाओ ये जो देख रहे हैं यू कैन सी दैट द वाटर इज टू क्लीन और वहाँ अंदर का जो मछली है ना वो पूरा आप देख सकते हैं पूरा दिखता है द वाटर इज सो क्लीन हियर सो क्लीन एंड मैं उसका पानी भी पिया एंड इट्स टेस्टी कोल्ड मतलब फ्रीज़र का तो ज़रूरत नहीं है इन गाँव वालों को अगर ऐसा उनको अगर मिलता है वाई डू दे नीड एनी फ्रिज और एनीथिंग यू सो इट राइट दिस इज़ हम लोग वो नदी से अभी मतलब जो रिवर है वहाँ से आए एंड ये जो गांव है मतलब आप जो देखिए रास्ता का प्रॉब्लम एंड ऑल बट क्योंकि ये एक जंगल के अंदर है यहाँ हाथी जंगली हाथी भी आते हैं और हम लोग आगे जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आगे हाथी दिखते हैं पर अभी दिखेंगे नहीं दिखेंगे पता नहीं पर वो बोल रहे हैं यहाँ किसी का घर वो लोग मतलब टूटा हुआ है जो कि हाथी सब तोड़े हैं तो हम लोग जाते हैं आगे देखते हैं एंड लेट्स सी कि हाउ पीपल आर सर्वाइविंग विद द नेचर नॉट इन द नेचर विद द नेचर एंड इट्स स्वीट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग
being in the nature is a true life or sukun, because our life is with the nature, and that's what I'm lucky, I'm blessed actually to experience all this. So let's walk up and see. सो आफ्टर वॉकिंग हम लोग वो जगह पहुँचे और जो घर हाथियों ने तोड़े थे, और अभी मैं उधर जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए वो घर। पर ये लोग बोल रहे हैं कि वो पीछे से वो टूटा हुआ है घर, वो सामने से पता नहीं चल रहा है, पर फिर भी मैं जा रहा हूँ उधर दिखाने के लिए। एटलीस्ट कुछ अगर दिखेगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और पता चला कि ये जो घर वाले हैं जिनका घर ये है, उनके लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली मुकलिंगिया के पास कुछ जगह दिए हैं घर बनाने के लिए। सो यहाँ के फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्यू लैंड इन द मुकलिंगिया हिल फॉर दिस पीपल। बट मेन चीज़ उनका ये है, उनसे बात करने के बाद पता चला कि लैंड तो मिल जाएगा घर के लिए, पर देयर मेन सोर्स ऑफ लिविंग इज़ फार्मिंग। सो फार्मिंग के लिए दे विल नॉट गेट द लैंड, सो इसलिए वो लोग यहीं पे फार्मिंग करके यहाँ खुश हैं, वो लोग बोल रहे हैं, और इसलिए वो यहीं गांव पे और यहीं जगह इन द नेटिव प्लेस दे आर स्टेइंग। एंड वी वेर सो हैप्पी एंड वी वेर एन्जॉइंग विद डिफरेंट फ्रूट्स जो वहाँ मिल रहा था, और कुछ कुछ जो भी हमें बहुत दिनों के बाद वो खाने के लिए मिल रहा था, इसलिए हम लोग उसको एंजॉय कर रहे थे, वो खा रहे थे, एंड इट वाज टू फन। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द एंड ऑफ द विलेज हम लोग वापस गांव की तरफ गए, और ये जो वाटर टैंक के बारे में हम बात कर रहे थे, दिलोन से ये पता चला कि जो भी ये वाटर टैंक गवर्नमेंट ने सप्लाई किया है, जो भी इक्विपमेंट्स और मटेरियल से गांव वाले खुद वो लेके वो रास्ते से आए हैं। और अगर ये देखेंगे, ये जो टूटा हुआ घर है, ये था उनका स्कूल, ये गांव का पहला और आखिरी स्कूल है, और ड्यू टू द कम्युनिकेशन लॉट ऑफ टीचर्स वर अनेबल टू रीच हियर, सो इसलिए ये टूटा हुआ है। ये भी हाथी लोग ही तोड़े हैं, और ये गांव वालों के जो स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़ाई करते हैं, वो लोग उदयगिर के पास नहीं तो कहीं और जाके पढ़ाई करते हैं। और जैसे कि दिलोन का हम देखेंगे, दिलोन भी वो उदयगिर के पास रह के अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। और अगर आपको मैं बताऊंगा, जो मेन सोर्स ऑफ लिविंग है गांव वालों का, वो है फार्मिंग, और वो लोग फार्मिंग मेन रीज़न यहाँ गांव में रहने का मेन रीज़न ये है फार्मिंग, क्योंकि गवर्नमेंट मुकलिंगिया के पास जगह दिए रहने के लिए, बट ड्यू टू फार्मिंग दे आर हियर एंड सर्वाइविंग। और आप देख सकते हैं ये गांव में लगभग 6 से 7 घर है, एंड द विलेज इज़ टू पीसफुल, क्योंकि इट्स सराउंडेड विद द जंगल एंड द माउंटेन्स, बट इट्स सूदिंग। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द होल विलेज वी स्टार्टेड टू गेट बैक, क्योंकि शाम हो गया था, और वो रास्ते में वापस जाना इट्स टू डिफ़िकल्ट। अगर थोड़ा अंधेरा हो गया तो हम लोग फंस सकते थे, इसलिए हम लोग वापस चलने का प्लान किए। एंड द विलेज इट्स वंडरफुल एंड आई एम हैप्पी टू विजिट इट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको रूम घर देले रह बसिया को। हौ आस नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आस नमस्कार मैडम। आमा जर जर हौ आस। Wow, it was a great experience coming here, talking to the people, exploring the village, and I don't know, but जो भी आप लोग आते हैं मुकलिंगिया पहाड़ में जाते हैं, वो जो गांव दिखता है, ये है वो गांव। उसको जितना मतलब पॉसिबल उसको मैं कवर करने के लिए ट्राई किया हूँ, एंड आई डोंट नो इफ अगर आप लोग को आना चाहते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, अगर लोकल गाइड होगा तो ही आपको मिलेगा रास्ता एग्जैक्टली, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट, बट एवरी व्हील हैज़ अ वे। सो इफ यू आर विलिंग टू कम, देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू फाइंड
So this is my third video, and if you love this video, please do subscribe my channel, give me support, and thank you so much for watching till end. And I will come up with a new video with exciting and soothing video. Till then, thank you so much. God bless you. Keep smiling. Bye bye. अभी अगर देख सकते हैं अपना गाँव को आसलु बहुत सुंदर गाँव बट एते कष्ट करके आप देख सकते हैं ऐसे वो कंधे में रख के वो आते हैं इस रास्ते में एंड इट्स डिफिकल्ट। हवाशु नमस्कार। एंड ये रास्ते में वो आना इट्स टू डिफिकल्ट फॉर देम। आप देखिए लाइव देखिए आप कि वो कम से कम 20 किलो वजन वो उठा के लेके आ रहे हैं। इट्स लाइक आई डोंट नो हाउ दे आर सर्वाइविंग बट ऐसे इट्स टू डिफिकल्ट फॉर देम एज वेल। सो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं एंड वी मेट हिम। वो सुबह मार्केट गए थे और जो भी उनको चाहिए चीज़ें लेके अभी इस रोड पे, इस रोड तो नहीं बोल सकते, ऐसे स्थिति में वो लेके आ रहे हैं। सो हम लोग का हालत ख़राब हो गया था वापस जाते वक्त, क्योंकि वाइल कमिंग इट वाज डाउनवर्ड्स बट वाइल रिटर्निंग इट वाज अपवर्ड्स। एंड आप लोग तो रोड देख चुके हैं एंड हम लोग का हालत पूरा ख़राब हो गया था एंड वी वेर नॉट इन ए पोजिशन टू वॉक। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ एनीवन वांट्स टू विजिट दिस प्लेस you can, but I would suggest you can stay for a night and return back on the next day, क्योंकि यहाँ वापस सेम डे में जाना is very much difficult and it was evening and we were walking so soon. And I hope you like this video, and if you like this video please do subscribe, like, share, and I'll come with new video. Thank you so much. Bye bye.